The photoelectric work function is different for different materials. It's same for all metals. It depends on the frequency of incident light. Depends upon the intensity of your incident light. Photoelectric function किस पे डिपेंड करता है बेटा? मटेरियल पे। It depends upon material. जैसे जैसे metal change होगा वैसे वैसे work function change हो जाएगा. So it is different for your different materials. So first option will be the answer. Clear? चलो नेक्स्ट वाला देखिए बेटा. If the work function of a metal is phi and the frequency of incident light is nu, there is no emission of the photoelectrons for what? फर्स्ट ऑप्शन। There is no emission of photoelectrons. यानी kinetic energy जितनी हो जाएगी इसके अंदर, that will be equal to how much बेटा? Energy का फॉर्मूला क्या है? Work function is equals to energy E is equals to kinetic energy, that is work function plus of your kinetic energy. अब kinetic energy इसमें क्या बोल रहा है? There is no photoelectronic emission. यानी energy h nu will be equal to your work function. है कि नहीं? So this will be the maximum. So V max will be equal to your phi divided by your h. Isn't it? ये हो गया condition. अब क्या बोल रहा है? If the work function of the metal is phi and the frequency of incident light is mu, isn't it? ये mu है, ये frequency mu. So there is no emission of the photoelectric effect. तो condition क्या होनी चाहिए बेटा? जल्दी से बताइए. जो frequency होनी है, that must be lesser than of your phi by your h. Clear? First option. Clear बेटा? यस सर। चलिए next question देख लीजिए. The photoelectric work function for a metal surface is 4.125 electron volt. The cutoff wavelength for this surface is about your how much? इसका मतलब क्या हुआ बेटा? Photoelectric work function for a metal surface दे रखा है. He has given us the work function of the metal surface. The cutoff wavelength for this surface is about. Cutoff wavelength मतलब जिसके बाद हम लोग को protection of photoelectrons नहीं होंगे. यानी maximum kinetic energy will become for me zero. यानी hc by your lambda, hc by your lambda must be equal to your work function. यानी threshold wavelength will be equal to hc divided by your work function. Am I clear? Given in the problem, photoelectric work function for the metal surface is given for me. What is the work function given beta? Work function is how much for me? 4.125 electron volt, isn't it? मतलब 4.125 into 1 electron volt is how much? 1.6 into 10 to the power of minus 19 joules. And speed of the light will be equal to how much beta? 3 into 10 to the power of 8 meter per second. Planck's constant की वैल्यू कितनी होती है बेटा? h की वैल्यू आप लोगों को मालूम है 6.6 into 10 to the power of minus 34. तो सब कुछ मालूम है, अभी सिर्फ इसमें डालने की वैल्यू है. So that is equals to h value is 6.6 into 10 to the power of minus 34. The speed of light 3 into 10 to the power of 8 divided by this will be equal to work function. Work function is 4.125 into 1.6 into 10 to the power of minus 19 joules. Done. Am I clear? अब इसका वेवलेंथ कितना आ रहा है एक बार चेक करिए बेटा. पहले पावर सिंप्लीफाई कर लीजिए. कितना आ रहा है बेटा? सर 1246 से भी कर सकते हैं ना? हाँ लेकिन वेवलेंथ इज गिवन इन टर्म्स ऑफ व्हाट? एंगस्ट्रॉम दे रखा है ना, तो एससी की वैल्यू आप कितना ले सकते हैं? 12400 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ.
सॉरी वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है 4.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, isn't it? से कर लीजिए, वही आ जाएगा 4.125 electron volt. 1 electron volt we need to get in terms of your joules. Wavelength is given in terms of angstroms. आ जाएगा. आ गया है. Sir, first option. Very good. First option will be First option. nearby the answer. Done. Yes, sir. चलो fourth question देखिए. A photosensitive metal surface is illuminated alternately with light of wavelength 3100 angstroms and 6200 angstroms. It is observed that the maximum speed of the photoelectron in the two cases is 2:1. The work function of the metal will be equal to how much? What is the formula? Formula क्या है बेटा? HC divided by lambda will be equal to work function plus maximum kinetic energy. यही का फॉर्मूला है ना अपने पास. वेवलेंथ दे रखा है फर्स्ट वाले के लिए 3100 और एक के लिए 6200, isn't it? और it is observed that the maximum speed मतलब ये k maximum are in the ratio of 2:1. Done. इसके लिए वेवलेंथ कितना है बेटा? वेवलेंथ इज 3100 एंगस्ट्रॉम्स है. तो एनर्जी क्या हो जाएगी? एनर्जी इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा. hc की वैल्यू मैं 12400 ले लो डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इज 3100. ये 0000 चले जाएगा, सो दिस विल कम आउट फॉर मी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यानी फर्स्ट वाले केस में अगर मैं एनर्जी लिख रहा हूं, आई विल डू हियर राइट नाउ फॉर दिस फोर्थ वन, isn't it? एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी? 4 इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस ऑफ योर काइनेटिक एनर्जी हाफ इनटू m इनटू योर v1 स्क्वायर, isn't it? So half m v1 square बाहर निकालो. So this will be equal to half into m into v1 square will be equal to 4 minus of your work function. यानी v1 square will be equal to, this value will become how much will be better? 2 by your m into 4 minus of your 5, isn't it? Similarly, for lambda is equals to 6200 angstroms के लिए HC by your lambda की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 12400 divided by wavelength is 6200. 0000 से आंसर 62 1s are 62 2s are, यानी this will be 2 electron volt, isn't it? यानी एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? 2 is equals to work function plus of your half into m into your v2 square सेकंड केस के लिए, isn't it? तो इसमें से v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? v2 square is equals to again 2 by m, I'm writing directly. This is 2 minus of your 5. So this is my equation number 2 and this is my equation number 1. दोनों का इक्वेशन ले लो, डिवाइड कर लो. So dividing 1 by your 2, so it is v1 square divided by v2 square is equals to, this is your 4 minus 5 divided by 2 minus of your 5. 2 by m वैसे भी कैंसिल हो जाएगा. डन बेटा? ये कितने में जाएगा? 1s are 2s are, so this will be equal to 2 by 1. So v1 square by v2 square is equal to this much. So v1 by v2 will be equal to 4 by 1. आ गया? Am I clear? I need the work function from equation 1 or equation 2. Anything I can get the value for that one. v1 by v2 की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 by 1 दे रखा है ना प्रॉब्लम में अपने को. तो ये कैंसिल नहीं, तो इसको यहीं कर लेता हूँ ना बेसिकली, तो सीधा सीधा हो जाए. v1 by v2 दे रखा है. So if I am writing here right now from equation 1 and 2, from 1 and 2, I can write v1 square divided by v2 square is equals to,
V1 square is 2 by m into 4 minus 5 divided by this is 2 by m into your 2 minus of your 5. 2 by m gets cancelled. V1 by V2 is given in the problem. V1 by V2, the work function of the metal is how much? It is observed that the maximum speed of the photoelectronic in these two cases is given as of your 2:1. Yani this will become for me 2 by 1 ka whole square, that is equals to 4 minus 5 divided by 2 minus of your 5. यानी ये हो जाएगा 4, that is 4 minus 5 divided by 2 minus of your 5. आ गया? हमें क्लियर? अब फंक्शन निकालो इसमें से कितना आ रहा है देख लीजिए. This will be equal to 4 minus 5 is equals to 2 इधर जाएगा 4 2 is 8 8 minus 4 5 यानी ये माइनस इधर चले जाएगा 4 इधर आ जाएगा तो this will become for me 3 5 is equals to 4 यानी 5 value is equals to 4 by 3 electron volts. This must be the answer. Yes, sir. कितना आया? 4 by 3. 4 by 3. Third option will be the answer. Clear? Yes, sir. चलिए next question देख लीजिए. A metallic surface is illuminated alternately with a light of wavelength 3000 angstroms and 6000 angstroms respectively of the photoelectrons. Under these illuminations are in the ratio of 3:1. Calculate the work function of the surface. Again same condition beta. Metallic surface is illuminated alternately with a light of wavelength 3000 angstroms, 6000 angstroms. It is observed that the maximum speed of the photoelectrons are 3:1. Calculate the work function. Same method. कर लोगे ना? करो. Sir, we are doing. कर लोगे ना? Yes, sir. चलिए ये वाला देखिए. The work function of the aluminium, potassium and platinum is 4.28 electron volt, 2.30 electron volt and 5.65 electron volt. The respective threshold frequencies will be equal to your how much? बताइए. Work functions दे रखा है ना बेटा. Work function of your aluminium is given how much for me? 4.28 electron volt. Work function of your potassium is given as 2.30 electron volt. Work function of your platinum is given as 5.65 electron volt. So I can say that work function of the potassium is lesser than the work function of the aluminium. Work function of the aluminium is lesser than the work function of your platinum. Isn't it? Work function का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Work function is equals to h into your nu or hc by lambda threshold. The threshold frequencies पूछ रहा है ना? Isn't it? H into nu frequency. That means threshold frequency is directly proportional to work function. Yes, sir. First option. So what option I can write? First option. Am I clear? Yes, sir. I have got it everyone. Any doubt in this one to anyone? Okay. 7th one. The work function of the metal is 1.84 electron volt. If the wavelength of the incident photon is 4000 angstroms, then the approximate maximum kinetic energy of the emitted photoelectron will be equal to how much? Work function of the metal दे रखा है बेटा. Work function of the metal यानी work function is equals to 1.84 electron volt, isn't it? And wavelength is given for me as 4000 angstroms. तो hc by lambda निकाल सकता हूँ ना मैं, isn't it? If the wavelength of the incident photon is 4000, then the approximate maximum kinetic energy of the photoelectrons will be equal to how much? hc कितनी होती है? 12400 electron volt. First option. आया maximum kinetic energy का फॉर्मूला
K max is equals to how much? यानी energy is equals to work function plus of your maximum kinetic energy. ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, isn't it? So I can write here HC divided by lambda. HC divided by lambda is equals to your work function plus of your maximum kinetic energy. So it is 12400 divided by wavelength. Wavelength कितनी है? 4000 angstroms is equals to work function. Work function is given how much for me? 1.84 electron volt plus maximum kinetic energy. तो ये 2 zeros, ये 2 zeros चले गए, 3.1 तो ये कितने में आ रहा है? 3.1 3.1 1 3.1 is equals to ये कितना है? 1.84 plus kinetic energy. तो kinetic energy कितना है? 3.14 minus 1.84. तो approximately 1.26 कितना? 1.26 that is equal to 1.2. 1.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो नियर बाय आंसर कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन. Yes, sir. चलिए, वेरी गुड. 8th वन देख लीजिए जल्दी से. जल्दी से 8th वन का आंसर बताइए कोई. Same question, direct formula based. The work function of the metal is given as 1.72 electron volt. The threshold wavelength for it is nearly how much? यानी अपने पास क्या क्या दे रखा है? वर्क फंक्शन दे रखा है. वर्क फंक्शन इज 1.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यू नो द वैल्यू ऑफ एचसी. एचसी की वैल्यू कितनी होती है? एचसी की वैल्यू होती है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ योर एंगस्ट्रॉम्स, यानी वेवलेंथ इज इक्वल टू हाउ मच? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज इक्वल टू हाउ मच? तो फॉर्मूला अपने पास मालूम है, HC डिवाइडेड बाय थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन. ऐसे लिख सकता हूं ना? Isn't it? So threshold wavelength कितना हो गया? Threshold wavelength is equals to HC divided by work function, यानी 12400 divided by 1.72. This wavelength will be in terms of angstroms. तो देख लीजिए आंसर कितना आ गया. सेकंड ऑप्शन आएगा, फर्स्ट ऑप्शन आएगा? सेकंड वन सर. ये एग्जैक्टली आ रहा? नो सर, अप्रोक्सीमेटली आ रहा. अप्रोक्सीमेटली आ रहा. तो सेकंड ऑप्शन. ओके, तो दैट मींस इट इज अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा? देख लीजिए, कुछ आंसर आया किसी को कैलकुलेट करके? 7200 आ रहा. जो नियर वे भी आ रहा था लिख ले सकता है बेसिकली. डन. 7500 आ रहा सर करीब. ओके फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए. The work function for the two metal surfaces are 2 electron volt and 3 electron volt. Both are illuminated with a light energy gap of incident photons greater than 3 electron volt. If the graph is plotted between the maximum kinetic energy and frequency for both the surfaces, then the slope of the graphs are in the ratio of your how much? Work function of two metals, मतलब ये हो गया एक मेटल ये और एक हो गया ये मेटल B, isn't it? Two metal surfaces, work functions दे रखा है. Work function of your A is given as 2.0 electron volt and work function of your B is given as 3.0 electron volt. Done. Both are illuminated by the light energy of incident photons greater than 3 electron volts. Greater than 3 electron volts मतलब क्या हो जाएगा बेटा? 3 plus H into nu 1 2 electron volt. ये भी उतना ही 3 plus H into nu 2 into your electron volt. Greater than 3 electron volts बोला है ना? तो अपने को फॉर्मूला मालूम है, H into nu will be equal to your work function plus maximum kinetic energy. Einstein's photoelectric equation. तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? तो इसमें से निकालो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू H into nu माइनस वर्क फंक्शन. अगर इन दोनों का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस दिस वन, सो विल बी गेटिंग ए स्ट्रेट लाइन. यहाँ पर हो गया काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पर हो गया मेरे पास फ्रीक्वेंसी, isn't it? So अगर मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ with y is equals to your mx plus of your c, then constant is right now for me negative. अगर constant नेगेटिव है तो अपने को ग्राफ ऐसा कुछ आएगा.
This is making an angle of your theta and this constant is minus of your phi. So tan theta की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा इसमें से देखो. I'm comparing this one with y is equals to mx minus of c. Y के जगह kinetic energy है h into nu minus of your c. C के जगह work function. यानी slope. m is nothing but of your slope. Slope मतलब tan theta. Tan theta की वैल्यू किसके बराबर हो गई? h के बराबर हो गई. Isn't it? तो मेटल चाहे कुछ भी रहो ये कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा ना बेटा. 1:1. हाँ तो it will be 1:1. Because if the graph is plotted between the maximum kinetic energy and frequency for both the graphs, the slope of the graphs are in the ratio. दोनों के लिए slope h ही आएगा. Isn't it? So the slope of the answer will be equal to your 1:1. Clear for everyone? Yes, sir. Sir, There we go. 10th one देखिए. The photoelectric work function is different for different materials. The same for all metals. Depends upon frequency of incident light. Depends upon the intensity of incident light. Already कर चुके हैं हम लोग एक बार ही. What will be the answer? First option. It is different for different materials. Am I clear? चलिए. Question number 11 देख लीजिए बेटा. Given that photon of light of wavelength 10,000 angstroms has energy of 1.23 electron volt. Now, when light of intensity I naught and wavelength 5,000 angstrom falls on a photocell, the saturation current and stopping potential are 0.40 microampere and 1.36 volt respectively. So the work function will be equal to your how much? करेगा कोई? Everything is given for Yes. given light of wavelength lambda. Lambda is given as of your 10,000 angstroms. And intensity कितना दे रखा है इसका? Initially I naught. And wavelength will be equal to how much for me? Lambda is equals to now when a light of intensity I naught and wavelength lambda is equals to 5,000 angstroms has been incident. The saturation current and stopping potential. The saturation current मतलब कैसे लिखोगे? IS. So the saturation current will be equal to 0.40 microampere and stopping potential. Stopping potential मतलब कैसे लिखोगे आप? V naught. V naught की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.36 electron volt. Or work function of this metal will be equal to your how much? Given that the photon of light of wavelength 10,000 in an incident light की जो wavelength है 10th one का ये option आ रहा है. चलो very good. तो work function कितना हो गया बेटा? Energy of your photon will be equal to work function plus of your kinetic energy, isn't it? That means energy of the photon will be equal to work function plus in terms of potential लिख रहे हैं तो E into V naught. Kinetic energy can be written as charge into potential ना बेटा. And charge of electron will be 1.6 into 10 to the power of minus 19. Done. आ गया. एनर्जी की वैल्यू कितनी है बेटा? फर्स्ट वन की एनर्जी कितनी रहेगी? 1 पॉइंट दिस वन. यानी एनर्जी ऑफ फोटोन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ. देखो एनर्जी ऑफ द फोटोन इज गिवन एज 1.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. And yani this will be equal to 1.23 into 1 electron volt will be 1.6 into 10 to the power of minus 19. तो देखो कितना आ रहा है? 1.23 into 1.6. ठीक है, ये कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख दो. और एक एनर्जी कितना दे रखा है बेटा? और एक एनर्जी कितना दे रखा है? 1.36. So that is stopping potential, no? When a light of wavelength is being given for this one on a photocell, the saturation current and stopping potentials have been given. The work function will be equal to how much?
photon of light of wavelength 10,000 angstrom. 10,000 के लिए energy is 1.23 electron volt. When a light of intensity I naught and wavelength 5,000 angstroms is been falling on the photocell. यानी energy for this one will become for me HC divided by wavelength. यानी 12400. This is 12400 divided by wavelength. Wavelength is 5,000 angstroms. And A20 से 20 चले जाए तो it is 124 divided by 50. कितना आ रहा है बेटा? This will come for me 2.48 इसकी एनर्जी. ठीक है, तो अगर ये एनर्जी 2.48 है तो इट इज 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी बेटा? स्टॉपिंग पोटेंशियल इज बीन गिवन है 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी E इनटू लिख लेना है मेरे को. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इनटू पोटेंशियल. डन. थोड़ा लंबा कैलकुलेशन नहीं जा रहा है. एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी. मैक्सिमम के लिए अगर काइनेटिक एनर्जी को स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख रहा हूं तो E इनटू V नॉट. ठीक है, E इनटू V नॉट की वैल्यू कितनी आ गई देखो. सर 1.69 into 10 power minus 19 into 40 माइक्रोएम्पियर करना सर. हाँ, कहाँ पर? ये सेकंड केस में सर EV नॉट E into 0.40 माइक्रोएम्पियर करना सर. V is equals to इसके लिए बेटा. ये 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए. हाँ, 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए वर्क फंक्शन है दिस वन बेसिकली. सो इट इज 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इसका वर्क फंक्शन है 5 प्लस E इनटू V नॉट. E इनटू V नॉट मतलब हाँ बेटा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन into 0.40 माइक्रोएम्पियर करना. हाँ तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 इनटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 19 सर into सेकंड ऑप्शन आ रहा. पोटेंशियल. अच्छा, पोटेंशियल कितना दे रखा है? 0.40 इनटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6. यस सर. ठीक है ना, कितना आ रहा है देखो. सर पोटेंशियल 1.36 है. Potential is 1.36, sorry, yeah, 1.36, and this will be 1.36. इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? सर सेकंड ऑप्शन आ रहा. तो इसको ना तो पूरा पोटेंशियल दे रखा है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो दे रखा है, तो मैंने पूरा स्टॉपिंग पोटेंशियल ले लो ना, सीधा सीधा हो जाएगा. यस सर. तो वो बेटर होगा ना अभी. तो 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन प्लस ये हो गया मेरे पास 1.36, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्योंकि ईवी में है ना सब कुछ. तो वर्क फंक्शन विल बी इक्वल टू योर 2.46 माइनस 1.36. So 2.46 minus 1.36 मतलब it will come out from me 1.1. 1.1 इलेक्ट्रॉन है ना, सेकंड ऑप्शन. वेरी गुड, सेकंड ऑप्शन आ रहा है. आ गया? यस सर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ये ऐसे वाले क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, जरा ध्यान दो इसके ऊपर. चलिए, when a metal surface is illuminated with the light of wavelength, so stopping potential formula E into V naught. हाँ बेटा, E into V naught is stopping potential. यहाँ पर E है, potential previous problem में उसने ऑलरेडी दे रखा था 1.6 वोल्ट बोल के, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया तो 1.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा ना सीधा सीधा. तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पर डायरेक्टली डाल दी EV के नॉट. ठीक है ना. चलो, when a metallic surface is illuminated with light of wavelength lambda, यानी ये एक metallic surface है, this is being illuminated by light of wavelength lambda, the stopping potential जो आ रहा है that is nothing but for me x volt. When the same surface is illuminated by the light, now the same surface is being illuminated by light of wavelength 2 lambda, इसका potential बन रहा है x by 3. Threshold wavelength from the metal surface will be equal to how much? अब देखो अपने को ये मालूम है, instant photoelectric effort लिख रहा हूँ मैं in terms of wavelength, यानी hc by lambda is equals to work function plus of your maximum kinetic energy. यानी this one is hc divided by this one is your lambda is equals to work function plus maximum kinetic energy मतलब E into V naught. V naught क्या हो गया बेटा यहाँ पर? Stopping potential हो रहा है. This is right now for me your stopping potential.
हमें क्लियर, isn't it? Yes, sir. So for wavelength lambda, तो लिख रहा हूँ, पर लैम्बडा वेवलेंथ के लिए HC डिवाइडेड बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस E इंटू एक्सपोनेंशियल हो गया है कि नहीं. नाउ for 2 lambda HC divided by 2 lambda is equals to work function plus of your this will be equal to how much for me beta second E condition into x by 3. E into x divided by 3. So this is my equation number 2, isn't it? तो अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करो, देखो कितना आ रहा, दोनों को इक्वल सर कर सकता 5 हूँ बेटा मैं, क्या कर सकता हूँ मैं, इक्वेटिंग टू -1 इसको बाई 3 से डिवाइड कर लो, डन. तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 2 की इक्वेशन क्या है यहाँ पर, एच सी डिवाइडेड बाई 2 लैम्बडा माइनस एच सी डिवाइडेड बाई 3 लैम्बडा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ. सो दैट इज इक्वल्स टू, ये हो गया 5 प्लस ई इंटू योर एक्स डिवाइडेड बाई 3 माइनस ये हो जाएगा 5/3 माइनस ई इंटू योर एक्स डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन को मैंने डिवाइड बाई 3 कर लिया. तो कुछ जा रहा है क्या देख लीजिए यहाँ पर, ई इंटू एक्स बाई 3 और ई इंटू एक्स बाई 3 चले जाएगा, इजंट इट. तो वर्क फंक्शन कितना आया, ये वर्क फंक्शन कितना आ रहा है देखिए, 1/2 माइनस 1/3 और ये हो गया 5 माइनस 5/3, यानी 1 माइनस 1/3 इज नथिंग बट हाउ मच फॉर 2/3, 2/3 सर 2 by मतलब 5 5 वैल्यू विल बिकम फॉर मी 3/2 इंटू ये हो जाएगा एच सी डिवाइडेड बाई 6 लैम्बडा, क्लियर, यानी 3 1 जा 3 2 जा, so that will be equal to HC divided by 2 2 जा 4 lambda, done. सर हाँ बेटा, सर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा ना, तो ये 5 की वैल्यू की जगह एससी बाय लैम्बडा नॉट डालना पड़ेगा. he is asking for me what the threshold wavelength for the metallic surface, यानी threshold wavelength will be equal to how much for me 4 lambda के बराबर आ जाएगा, because work function is equals to HC by your threshold wavelength है ना, तो threshold wavelength की जगह कितना आया 4 lambda, so this will become for me 4 lambda, second option. सर ये वैल्यू एससी बाय लैम्बडा नॉट डाले तो भी सेम आता ना सर शुरू से. हाँ तो एससी बाई लैम्बडा ही लगाया ना हमने स्टार्टिंग में, खाली फर्स्ट वन के लिए डबल करा है, सेकंड वाले के डबल करा हुआ है, फर्स्ट वाला का सेम एज इट इज लैम्बडा, डन. यस सर. कैलकुलेशन का खेल है, ज्यादा कुछ भी नहीं, फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला लग रहा है, देख लीजिए, डन. ठीक है.
आ गया बेटा? हमें audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Next question. ये वाला देखिए. The stopping potential V of the photoelectric emission from a metal surface is plotted along y-axis and frequency of incident light along x-axis. A straight line is obtained as shown. Planck's constant is given by. चलिए बताइए. No mistake. Slope of the line. So first option. फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है. कितने जनों को फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है बेटा? Stopping potential V for photoelectric emission from a metal surface is plotted along y-axis and frequency mu of the incident light along the x-axis. The straight line is obtained on as shown. Planck's constant is given by बोल रहा है. Slope of the line, product of the slope of the line and the charge on the electron, product of the intercept along y-axis and mass of the electron, product of the slope and mass of the electron. वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या है बेटा? Einstein's photoelectric equation अगर मैं लिख रहा हूं, so it will be equal to h into nu is equals to work function plus E into V ना बेटा, isn't it? तो EV को बाहर निकाल रहा हूं मैं, so V is equals to h into nu divided by E minus phi divided by E, isn't it? तो y is equals to m into x minus c से अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे m is your slope, so slope के जगह मेरे पास क्या है यहाँ पर h by e, यानी m will be equal to h by e. Sir, fourth option. फोर्थ ऑप्शन आ रहा, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इनटू मास नहीं होता. h is equals to slope is nothing but how much for me बेटा? Slope is equals to h divided by e ना, तो h will be equal to slope multiplied with the charge. So product of your slope होगा m multiplied with your charge होगा ना. Second option will be the answer. Clear? m मतलब क्या है पर मास नहीं होता. m is nothing but equal to slope. Yes, sir. आ गया? Yes, sir. Third option, second option, Juveria, very good. Chलिए. ये आप लोग को दे चुका है. चलिए. 14th one again very good question बेटा. Try करिए सभी. Stopping potential is plotted against 1 by lambda, where lambda is the wavelength of incident radiation for two metals. Okay, metal 1 may be gold and metal 2 may be a cesium. Theta 1 is greater than theta 2 if metal 1 is gold and metal 2 is cesium. Theta 1 is equal to theta 2 for any two metals. Theta 1 is greater than theta 2 if metal 1 and metal 2 are gold and as well as of your copper respectively. क्या होगा बताइए? थोड़ा ऑप्शन आ रहा है, छोड़ चेक कर ले. HC divided by lambda will be equal to work function plus E into V है ना बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल. यानी पोटेंशियल को अगर बाहर निकाल रहा हूं तो V is equals to, अभी लिखे हम लोग, it will be equal to HC divided by E into this will be equal to how much और में बेटा 1 by lambda minus work function divided by E, यानी स्लोप वैल्यू will be equal to your HC divided by E हो जाएगा. 1 by lambda के साथ लिख रहा हूं तो, isn't it? So slope is nothing but by HC divided by your E. That is always same for everyone, isn't it? अगर slope constant है सभी के लिए, then theta 1 and theta 2 will be same for any two metals. Metals से कोई मतलब नहीं है उसमें. So I'm drawing a graph between potential versus your, यानी देखो ये किससे कंपेयर कर रहा हूँ मैं? I'm comparing this one with y is equals to m into your x minus c. देखो x एक्सिस पे 1 by lambda ले लिया, तो यहाँ पर भी 1 by lambda हो गया. कांस्टेंट तो वैसे ही हो गया. दिस इज राइट नाउ फॉर मी स्लोप. Am I clear? Yes, sir. चलिए, ये 14 बेस्ट क्वेश्चंस यहाँ पर हो गए. एक बार आप लोग go through कर लीजिए बेटा. Am I clear with this one? Sir, बेटा तो जो स्लोप h by e आ रहा सिर्फ फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के बीच में आता ना सर वो? हाँ, काइनेटिक एनर्जी के बीच में आता. काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी. यहाँ पर अभी पोटेंशियल वर्सेस
1 बाई लैम्डा के दे रखा है ना, तो यहाँ पर देखो यही इक्वेशन से लिखा है मैंने आप लोग को, इसलिए समझाने के लिए। यहाँ पर हो गया HC बाई और लैम्डा इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस टॉपिंग पोटेंशियल। अपने को ग्राफ चाहिए बिटवीन पोटेंशियल एंड 1 बाई लैम्डा, तो मैंने पोटेंशियल को बाहर निकाला, तो पोटेंशियल को बाहर निकाला तो HC बाई और E इंटू 1 बाई लैम्डा माइनस 5 बाई E, दिस इज द इक्वेशन फॉर अस। आ गया? Yes, sir. स्लोप इज ऑलवेज हाउ मच फॉर मी, HC डिवाइडेड बाई, ये तो कांस्टेंट रहता ना, HC कांस्टेंट है, E भी कांस्टेंट है, क्या मिडल पे डिपेंड कर रहा है क्या? जैसे मिडल चेंज होगा क्या HC की वैल्यू चेंज होगी? नहीं चेंज होगी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी चेंज नहीं होगा, चाहे कौन सा भी मेटल है उससे अपने को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। स्लोप इज ऑलवेज फॉर मी कांस्टेंट, तो दोनों की जो एंगल आएगी दैट विल बी रिमेनिंग फॉर मी सेम। क्लियर? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें मिस हो चुका, ये नोट्स भेजा है मैंने कल आप लोगों को? Yes, sir. लॉजिक गेट्स की नोट्स खुल रही है आप लोगों के पास? चलिए नेक्स्ट वन एन इंपॉर्टेंट वन बेटा, छोटा सा टॉपिक है, आप लोग आईपी में बहुत बार पढ़ चुके होंगे। डेविसन एंड ग्रीमर एक्सपेरिमेंट। इस टॉपिक को एक बार आप लोग एनसीईआरटी से निकाल के एक बार डायग्राम के हिसाब से पढ़िए, कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं बेटा एज इट इज, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एप्लीकेशन देखो बेटा होता क्या है बेसिकली। डेविसन और ग्रीमर दोनों डिफरेंट साइंटिस्ट है बेटा, जिन्होंने वेवलेंथ ऑफ द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा था, एंड दे टोल्ड दैट whatever the electron you are using for some experimental setup, it gives an evidence for your de Broglie's wavelength। अगर कोई पूछे, अगर आपको ऑप्शन में पूछे कि डेविसन ग्रीमर एक्सपेरिमेंट किसके लिए यूज होता है, it gives me what बेटा, evidence of your de Broglie's wavelength। So I'll write here it gives evidence of de Broglie wavelength। ठीक है? And we know that electron have dual nature, electron has dual nature। ये चीज को इन्होंने पढ़ा था, एक तो ये पार्टिकल नेचर के वास्ते होगा और एक ये है वेव नेचर। दोनों के जब कर रहे हो तो आपको जो रिजल्ट आना चाहिए दैट शुड बी कम आउट फॉर मी द सी। ठीक है ना? सो इलेक्ट्रॉन हैज अ ड्यूअल नेचर, इट मे बी अ पार्टिकल नेचर और इट मे बी अ वेव नेचर। इसका एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है बेटा, छोटा सा यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गन होता है, ऐसा एक फिलामेंट होती है, एंड दिस फिलामेंट इज बीन कनेक्टेड विद द पोटेंशियल्स। यहाँ पर एक पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज कनेक्टेड टू सम नेगेटिव टर्मिनल, ऐसा पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, यानी देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट। एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन गन के सर का दिख रहा है देखो, सो दिस इज कॉल्ड एज ऑफ योर इलेक्ट्रॉन गन, जिसमें से जैसे हम लोग ने इसको करंट फॉर्म किया तो ये हीट अप हो जाएगा बेटा। ये जैसे ही हीट अप हो जाएगा इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ दिस वन, इलेक्ट्रॉन्स ऐसा निकलेंगे, तो दिस विल बी द इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, दिस विल गो एंड स्ट्राइक ए मेटालिक सरफेस हियर। ये मेटालिक सरफेस बना हुआ है, सर्टेन एंगल रखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं निकल क्रिस्टल। निकल क्रिस्टल थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं बेटा, उसलिए बोल रहा हूँ, वरना मुझे वर्कआउट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऐसा कुछ होता है बेसिकली, एक बार आप एनसीईआरटी निकाल के भी पढ़िए। यहाँ से जो जा रहा है ना, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन बीम, n नंबर ऑफ योर इलेक्ट्रॉन बीम जाते रहेंगे। ये जैसे यहाँ पर गए तो ये थोड़ी देर के बाद इट इज बीन फाउंड टू बी इंक्लाइंड, ऐसा मैंने इसको ऐसा इंक्लाइन कर दिया, तो ये रे ऑफ लाइट इस पे जो इलेक्ट्रॉन गिर रही है ना, ये इससे गिर के ऐसा रिफ्लेक्ट होगी एट ए सर्टेन एंगल थीटा। ठीक है? एंड यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर होता है, ऐसा कुछ बेसिकली, और मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, ऐसा कुछ गैल्वेनोमीटर होता है रीडिंग्स वगैरह देखने के लिए। स्केल होता है यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, सो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1 2।
ऐसा कुछ स्केल होता है और यहाँ पर अपने को गैलोनोमीटर होता है बेसिकली। इसको देखने के लिए यहाँ पर हम लोग एक माइक्रोस्कोप लगाते हैं ऐसा कुछ, एंड दिस इज बीन कनेक्टेड टू दी गैल्वेनोमीटर। यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर को लगाते हैं, सो डिफ्लेक्शन अगर कुछ हुआ तो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्ट्राइक होकर यहाँ पर गिरा, सो यहाँ पर से जो है ना, दिस इज इलेक्ट्रॉन विच इज बीन इंसिडेंट। और यहाँ पर थीटा क्या होता है बेटा, थीटा इज योर स्कैटर्ड एंगल। ये टर्मिनोलॉजीज याद रख लो, दैट इज मोर देन इनफ। थीटा इज योर स्कैटर्ड एंगल, क्लियर। So Davisson and Riemann experiment किसके लिए यूज होता है बेटा? It gives the evidence of the de Broglie's wavelength. Electron has a dual nature, one is particle nature and a wave nature. इलेक्ट्रॉन नेचर के अंदर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन गन लेके इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ से अपने को n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ऐसे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड स्ट्राइक करेंगे निकल क्रिस्टल पे। निकल क्रिस्टल एक एंगल पे भरा हुआ होगा, दैट इज नथिंग बट FR 5। तो ये जितना एंगल यहाँ पर बनेगा इस पे भी उतना ही होगा, यानी 5 प्लस थीटा प्लस 5 मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्रीज, isn't it? यानी 25 प्लस ऑफ योर थीटा मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। एंड थीटा इज नथिंग बट व्हाट फ्रॉम योर स्कैटरिंग एंगल, isn't it? तो इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है फॉर डूइंग द न्यूमेरिकल्स, वन इज अबाउट योर ब्रैग्स कंडीशन, जो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, बहुत ज्यादा डिटेल डेरिवेशंस और एप्लीकेशंस है तो उतना ज्यादा यूज नहीं है, आप सिर्फ याद रख लीजिए ब्रैग्स कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। वेव ऑप्टिक्स में हमने पढ़ा होगा, for the constructive interference the condition क्या हो जाएगा बेटा, n into lambda must be equal to 2d into your sin theta। n is your integer, n is your lambda is your wavelength, 2d into your sin theta, clear। एक बार एक्सपेरिमेंट देख लीजिए बेटा, इसमें अपने को ये वाला इंपॉर्टेंट है। अब 2 दिन ग्राफ्स है बेटा, वो ग्राफ्स कंडीशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज बेस्ड अपॉन व्हाट, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज ऑफ योर ब्रैग्स लॉ। और ये कौन सा मेटल से बना हुआ है, निकल क्रिस्टल इज बीन यूज्ड एंड हियर इट इज योर इलेक्ट्रॉन गन। डन। सर निकल क्रिस्टल पहले से थीटा पे रहता है या फिर अपन चेंज करते हैं? अपन चेंज करते हैं बेटा, इनिशियली ऐसे स्ट्रेट होता है, isn't it? इनिशियली ये ऐसा स्ट्रेट होता है, उसके बाद हम लोग उसको स्लोली चेंज करके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे। आपने आईपी में पढ़ा होगा, एट व्हाट एंगल इट विल गिव मी द एग्जैक्ट वोल्टेज, याद है कौन सा वोल्टेज था? याद नहीं है? नहीं पढ़े 54 सर। वोल्ट सर। अरे नहीं बेटा, पढ़ना बेटा, ग्राफिकल क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मैं आपको एक बार 54 लिखवा वोल्ट देता हूँ सर। बेसिकली। देखो 2d sin थीटा into लैम्बडा में ब्रैग्स कंडीशन के लिए 25 प्लस ऑफ एरिया याद रखना है अपने को, 2 थीटा प्लस 5 is equals to 180 degrees, sum around it theta is equals to 50 degrees, isn't it? We get the wavelength which has been matching with exactly the wave nature of the particle, ठीक है। सर अप्रोक्स 54। हाँ अप्रोक्स 54। मैं ग्राफ से एक बार आप लोगों को ड्रॉ कर देता हूँ, दैट विल बी मोर बेटर। थीटा की वैल्यू एग्जैक्टली यू नो सम अराउंड अब थीटा इज इक्वल्स टू 50 डिग्रीज ले ले एंड डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 0.91 एंगस्ट्रॉम्स ले ले, इसलिए तो अगर इसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो वेवलेंथ की वैल्यू जो है ना नियरर टू योर 1.66 वेवलेंथ आ रही है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बेटा, मैंने ऐसा नहीं कि मैं कर रहा हूँ ये, सो दिस इज योर नियरर टू द वेव नेचर, वेवलेंथ का। ये आया कहाँ से, याद है आप लोग? डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? h/p। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लैम्बडा इज इक्वल्स टू 112.27 डिवाइडेड बाय पोटेंशियल, दैट इज नथिंग बट रूट, isn't it? De Broglie wavelength of electron lambda is equals to 12.27 divided by your root of your v। याद है जब हम लोग वोल्टेज जो है ना 54 वोल्ट्स लगा रहे हैं, isn't it? Wavelength will be lambda is equals to 12.27 divided by your under root of your 54। Done. So this value is coming out for me over 12.27 angstrom से 12.27 into 10 to the power of minus 10 divided by root 54. This is approximately 1.67 angstroms। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों मैच कर रहे हैं, तो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर ऑलमोस्ट ऑल मैच कर रहे हैं बेसिकली, isn't it?
सो व्हाट एंगल बेटा 54 से लेके 50 तक, यानी एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम लोग डी ब्रोगलीस वेवलेंथ से लेके जाएं दैट विल बी इक्वल टू 54 वोल्ट। डन। यस सर। Yes, sir. ये जो पोटेंशियल लगाते हैं कहाँ लगा रहे हैं बेटा, ये वाला पोटेंशियल देख रहे हैं ना। ये जो पोटेंशियल लगा रहे हैं ना इसके लिए वी, कितना पोटेंशियल पे अपने को आंसर मैच हो रहा है बेटा 54 वोल्ट। और स्कैटरिंग एंगल के बीच में एंगल कितना है 2 थीटा प्लस ऑफ योर 5। ठीक है, इसका ग्राफ अगर मैं आपको रफली बता दूं, जब भी लोगों ने एक्सपेरिमेंट करा था ऐसा नहीं है कि एक ही साथ आ गया, दे स्टार्टेड डूइंग एक्सपेरिमेंट विद योर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज। फर्स्ट वाला देखो, जब आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो विद योर इंसिडेंट लाइट, और वी कैन से दैट इंसिडेंट बीम जब आप डाल रहे हो यहाँ पर, और यहाँ पर सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी। तो पहला वाला जो ग्राफ आ रहा था बेसिकली ऐसा कुछ, ऐसा जाके फिर ऐसा जाके ऐसा कुछ, इजंट। फिर इंसिडेंट बीम डाला आपने, फिर एट ए सडन एंगल, ये कितने पोटेंशियल पे 44 वोल्ट पे। देन हम लोग ने फिर उसका पोटेंशियल बढ़ाया, जो बीम इलेक्ट्रॉन बीम्स निकल रहे हैं, तो इसमें से फिर हम लोग को ग्राफ ऐसा कुछ आया, फिर ऐसा पोटेंशियल। बट व्हेन यू आर ड्राइंग ए ग्राफ, ये वाला इंपॉर्टेंट है देखो, एट ए सर्टेन एंगल ऑफ योर 50 डिग्रीज, एंगल कितनी है 50 डिग्रीज, एंड पोटेंशियल कितना है बेटा, पोटेंशियल इज योर 54 वोल्ट। तो इसके पास अपने को एक पीक वोल्टेज आया हुआ, isn't it? So he may ask you that at what voltage and what angle, isn't it? यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंसिडेंट बीम है और यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट at a potential of 54 volt and angle of 50 degrees, we get a sharp intensity which says that wave nature and particle nature of the electrons have been matching. फिर उन लोगों ने फिर इसका पोटेंशियल बढ़ाया, तो उसके बाद फिर उन लोगों को ग्राफ ऐसा कुछ आया, फिर उसके बाद स्ट्रेट ऐसा सम अराउंड 80 और 60 वॉट, और बढ़ाया पोटेंशियल उन लोगों को, तो ये ग्राफ वाला ऐसा कुछ आके ऐसा गया, दैट मींस इट अराउंड 64 वोल्ट। फिर और ग्राफ इसका पोटेंशियल इंक्रीज किया 68 वोल्ट, उसके बाद तो इन लोगों को सीधा एक इंटेंसिटी ग्राफ ऐसा आ चुका है जहां पर इंटेंसिटी ऑलमोस्ट ऑल कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। तो एक ऐसा ग्राफ है, ए वेरी पेक्यूलर ग्राफ है, वेरी पेक्यूलर ग्राफ है, at an angle of 50 degrees and potential of 54 degrees, the wave nature and particle nature of the electrons are been coinciding. That particular point, that particular peak point जहां पर मैच कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं डी ब्रोगलीस वेवलेंथ का हाइपोथेसिस का explanation. At what voltage 54 volt and at an angle of 50 degrees. हमें क्लियर? ये ग्राफ याद रख लो बस, काफी है, अब ज्यादा डिटेल में जाओगे तो और ज्यादा डिस्कशन चले जाएगा। बस इतना याद रख लो कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पर कोइंसाइड कर रहे हैं, एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्रीज। 50 डिग्रीज कौन रख रहे हैं, ये वाला निकल क्रिस्टल को आप 50 डिग्रीज पे रखना है, इजंट इट? थीटा की वैल्यू कितना रखना है अपने को 50 डिग्रीज रखना है, और पोटेंशियल अपने को 54 वोल्ट्स रखना है यहाँ पर, यानी ये जो पोटेंशियल है अपने को ये 54 वोल्ट्स रखना है, और ये जो एंगल जो है ना 50 डिग्रीज पे रखना है। तो इस एंगल पे अपने को एक मैचिंग पॉइंट मिला जहां पर वेव नेचर और पार्टिकल नेचर का वेवलेंथ कोइंसाइड हो रहा है, ठीक है ना? हाँ, क्रिस्टल डायफ्रैक्शन, थर्मियोनिक एमिशन वगैरह वगैरह। तो थोड़ा एक बार एनसीटी निकाल के निकालो, बस इतना आपने याद रखना है बेटा, पोटेंशियल 54 वोल्ट है और एंगल 50 डिग्रीज। और फॉर्मूला क्या यूज करेंगे बेटा, ब्रैग्स इक्वेशन, n लैम्डा इज इक्वल टू 2d इनटू sin थीटा। t इज व्हाट बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स के बीच में की जो डिस्टेंस होती है ना, वो वाली इज नथिंग बट फ्यू d। क्लियर? Yes, sir. तो कौन सा इंटरफेरेंस आता है बेटा इसमें, कंस्ट्रक्टिव की डिस्ट्रक्टिव? Constructive. P के पास अपने को कंस्ट्रक्टिव आता, पोटेंशियल कितना यूज करते हैं 54, और एंगल कितना लेते हैं 50 डिग्री। 50 डिग्रीज, और रेंज क्या है
अब ये पूछेगा कि एक्सपेरिमेंट रेंज कहां से कहां तक किया हुआ है 44 वोल्ट इज द लोएस्ट वोल्टेज और 68 वोल्टेज इज द हाईएस्ट वोल्टेज isn't it? ये पूछा जाएगा कि एक्सपेरिमेंटल ने इस एक्सपेरिमेंट कितने पोटेंशियल के बीच में वर्क किया गया हुआ था तो 44 वोल्ट से लेके 68 वोल्ट ये भी पूछा जा चुका है एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ था वो लोग ने कौन से रेंज ऑफ पोटेंशियल से लेके कौन से रेंज ऑफ पोटेंशियल तक वो लोग ने ऑब्जर्वेशंस मिले तो कहां से लिखोगे आप 44 वोल्ट से लेके 68 वोल्ट पे वो एक्सपेरिमेंट चला और एग्जैक्टली एट ए 54 वोल्ट एंड एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्रीज द वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर वाज बीन कोइंसाइड ठीक है ना am I clear with this one Yes, sir. Sure. Yes, sir. So by this all the theoretical questions of your webinar have been over मैंने आपको दो असाइनमेंट्स भेजे थे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आई डोंट नो वेदर यू माइट हैव बीन डन और नॉट तो मैंने करवा दिया और एक भी भेजा था आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बताइए बेटा जल्दी से फाइंड द रेशियो ऑफ wavelength of helium at 27 degrees Celsius and wavelength of nitrogen at 127 degrees Celsius. Considering both gases are monatomic gas. Sorry, find the ratio of your lambda. Ratio of your wavelength of helium at 27 degrees Celsius and wavelength of nitrogen at 127 degrees Celsius, considering both of them to be a gases. फॉर्मूला क्या था बेटा याद है आप लोगों को लैम्बडा इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ योर 3mk into t m क्या आता है बेटा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल k is your Boltzmann's constant t is your absolute temperature मास कैसे लिख सकता हूं बेटा मैं मास इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर लिख सकता हूं मैं ऐसा यानी wavelength will be equal to your h divided by under root of your 3 into this is molecular weight divided by Avogadro number into your Boltzmann's constant into temperature T. इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाता है बेटा दैट विल बी इक्वल टू अगर मैं पूरे कांस्टेंट्स वैल्यूज निकाल के डाल रहा हूं दिस इज अप्रोक्सीमेटली 25 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ m into t डायरेक्ट शॉर्टकट याद रख लीजिए बेटा मॉलिक्यूलर वेट और टेंपरेचर में अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछ रहा है तो लैम्बडा का फॉर्मूला क्या हो गया लैम्बडा इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली 25 divided by under root of your molecular weight into your absolute temperature. This will save your time for doing such type of your problems. Temperature is in your Kelvin. Temperature is in your Kelvin. This one is molecular weight must be taken in terms of kg and wavelength should be taken in terms of meters. तो अब डाल के करिए डी ब्रोगली वेवलेंथ का डाल के कर लीजिए लैम्बडा की वैल्यू इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ योर m by t यानी दिस वन इज वेवलेंथ ऑफ योर हीलियम at 27 degrees Celsius divided by wavelength of your nitrogen at 127 degrees Celsius. Yani that will be equal to 25 will get cancelled. So that will be equal to under root of your molecular weight of your helium into temperature of your helium. है कि नहीं? Divided by this is under root of your 25 gets cancelled. This is a molecular weight यानी ये नीचे और ऊपर चले जाएगा ना बेटा इसको और थोड़ा सिंपलीफाई कर दो सीधा Sir, 3:1. तो ये वाला एक नीचे एक वाला ऊपर चले जाएगा 25 कैंसिल हो जाएंगे हाँ so this will be equal to under root of your
molecular weight of your nitrogen divided by molecular weight of your helium into temperature of your nitrogen divided by temperature of your helium. बस ये फॉर्मूला ले लीजिए, will get the answer. Temperature should be taken in Kelvin बेटा, अपने को 27 डिग्री सेल्सियस है और 127 डिग्री सेल्सियस है, तो बताइए कितना आ रहा? Wavelength of helium divided by wavelength of nitrogen is equals to under root of molecular weight of nitrogen is 28 and this one will be equal to 4. इसका टेम्परेचर कितना बन जाएगा बेटा नाइट्रोजन के लिए 127 plus 273 मतलब ये हो गया 400 divided by 27 plus 273 that means 300. ये 3 zeros से 2 zeros will get cancelled. So that is equals to under root of your ये हो गया 28 divided by 4 into 4 divided by 3. 4 चले गया. So this is under root of 28 divided by 3. So it is approximately equal to under root of 27 by 3 बेटा, क्योंकि easy calculation हो जाएगा ना बेटा. 27 and 28 almost all nearer by है, यानी nearer to your root 9 यानी nearer to your 3. आ गया? Yes, sir. Am I clear? चलिए. Yes, sir. Next question. थोड़ा अच्छा टॉपिक है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा अच्छे खासा प्रैक्टिस कर लो और पीवाईक्यू को 2-3 बार करो, इट विल हेल्प यू आउट बेसिकली. इससे ज्यादा नहीं, आपको नहीं आता. इवन यू सी द पेपर आल्सो विल गेट either the problems on photoelectric effect या de Broglie's wavelength. अगर थोड़ा हटके गया, थोड़ा रीजनिंग असर्शन गया तो वो ग्राफ का थोड़ा बहुत एप्लीकेशन डाल सकता है. स्पेशली वो वाला कंडीशन की कौन से रेंज में एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ था, 44 से लेके 68 तक जो था ना, वो बच्चे बिल्कुल ही छोड़ जाते हैं. वो एंगल 50 भी याद हो जाती है, 54 वोल्ट भी याद होती है, लेकिन जो रेंज ऑफ ग्राफ किया हुआ है ना, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कभी कभी वो वाला भी क्वेश्चन पूछना चाहता है जहां पर हम लोग 99% ऑप्शन रख के आने का बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी. वो थोड़ा थियोरेटिकल पॉइंट वहां पर आपको थोड़ा बहुत याद रखना, अदरवाइज रिमेनिंग एवरीथिंग इज फाइन विद दिस वन. चलिए ये सर वाला 40 से ले सकते हैं. हाँ रेंज मैंने बताया ना बेटा, इसका रेंज आपने को कहां से स्टार्ट किया. दिस इज एज पर द एनसीईआरटी टर्मिनोलॉजी, isn't it? 44 वोल्ट से लेके 68 वोल्ट तक. Not 40 सर. नॉट 40. ठीक है, अगर ऑप्शंस में नियर बाई तक दे रहा है तो डिपेंड करता है बेसिकली. 44 ना दे के अगर नियर बाई 40 दे दिया, उसके बाद से एग्जैक्टली ड्रास्टिकली 50 वगैरह रेंज है तो देन नियर बाई वी कैन टेक इट आउट. ठीक है, चल टेक दिस क्वेश्चन बेटा. टू पार्टिकल्स मूव एट right angles to each other. Their de Broglie wavelengths are lambda 1 and lambda 2. The particles suffer perfectly inelastic collision. Can anyone tell me what do you mean by perfectly inelastic collision? P is equals to 1 sir. After collision, Zero, sir. two bodies will stick and move with one common velocity. है कि नहीं? Yes, sir. So the de Broglie wavelength lambda of the final particle is given by first option is 1 by lambda square is equals to 1 by lambda 1 square plus 1 by lambda 2 square. Second option is 2 by lambda is equals to 1 by lambda 1 plus 1 by lambda 2. Third option is lambda is equals to lambda 1 plus lambda 2 divided by 2. And fourth option is lambda is equals to under root of your lambda 1 into lambda 2. Good question. Two particles moves at right angles to each other. मान के चलो यहाँ पर एक particle है. This particle is moving like this with a velocity of your v1. And another particle is right over here. It is moving with a velocity of v2. इसका wavelength lambda 2, इसका wavelength lambda 1. And both of them are hitting perpendicular to each other. यानी दोनों के बीच में एंगल कितनी हो गई 90 degrees. आफ्टर कोलिजन क्या हो गया कि ये दोनों मिलके एक पार्टिकल के सर्कल जा रहे हैं राइट. दे आर बीन मूविंग विद वन सिंगल पार्टिकल विद ए कॉमन वेलोसिटी v जिसकी वेवलेंथ हो गया लैम्डा. देन
So as per the what do you call that one inelastic collision resultant निकाला हूँ तो P is equals to under root of your ये फॉर्मूला बन जाएगा मुझे P1 square plus P2 square plus 2P1 P2 into cos 90 cos 90 0 तो ये पूरा 0 बन जाएगा तो फाइनल मोमेंटम विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ योर P1 square plus P2 square ठीक है ना. So I can write this one as of your P1 square plus of your P2 square will be equal to P square. Can I write the momentum in terms of wavelength beta? Yes, sir. h by lambda. कैसे ले सकता हूँ मैं momentum को lambda H by divided by h divided by lambda 1 whole square plus h divided by lambda 2 whole square is equals to your h divided by lambda का whole square. Everywhere lambda will get cancelled. तो कितना आ रहा है 1 by lambda 1 square plus 1 by lambda 2 square is equals to 1 by lambda square. आ गया. Yes, sir. First option. So first option will be the answer. Good question, but एक बार देख लीजिए कोई डाउट रहा है तो please let me know. Two particles are moving at right angles to each other. The de Broglie wavelength lambda 1 and lambda. अगर ये क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट as it is आएगा बेटा. As it is आएगा. Done. आ गया बेटा. Sir, inelastic term used for inelastic मतलब after the collision these two are sticking to each other and moving with one common velocity बेटा. यहाँ देखो ये पार्टिकल मास m है ये पार्टिकल मास m है आफ्टर कोलिजन इसका मास हो गया 2m एंड कॉमन वेलोसिटी इज v. So इसका मोमेंटम p1 प्लस इसका मोमेंटम p2 यानी m into v1 प्लस ऑफ योर m into v2 will be equal to your 2m into common velocity यानी p1 प्लस p2 will be equal to your p. बस समझ में आए. चलिए अब एक अलग क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसे वाले पे. This is also a good question beta. Try to do it out. A particle P is formed due to completely inelastic collision. Completely due to inelastic collision of particles X and Y. Particles X and Y having de Broglie wavelength lambda X and lambda Y. Okay, if X and Y were moving, in opposite directions, then the de Broglie wavelength of P is, first option is, एक मिनट आप लोग ट्राई Good. There are the options for this one, beta. First option is lambda x minus of lambda y. Second option is lambda x lambda y divided by lambda x plus lambda y. Third one is lambda x into lambda y divided by lambda x minus lambda y. Fourth option is right now for me lambda x plus lambda y. Good question, but एक बार पहले क्वेश्चन को समझिए उसके बाद try to do it out.
particle is formed due to the complete inelastic collision. Same वाला जैसे ऊपर वाला करें ना वैसे वाला. But both of them are moving in x and y. Particles x and y having a de Broglie wavelengths lambda x and lambda y. If x and y were being moving in opposite direction, isn't it? X and y Sir, are being moving in the opposite direction. Inelastic collision है मतलब momentum conserved हो गया ना बेटा. मान के चलो ये पार्टिकल है मेरे पास. So this one is moving with this velocity, isn't it? This is x particle. और इसके opposite direction में और एक particle move कर रहा. ये हो गया y, isn't it? इसकी wavelength है मान के चलो lambda x और इसकी wavelength हो चलो lambda y. Both of them are moving in opposite direction ना बेटा, isn't it? अगर this one I'm taking in positive direction, this one is in negative direction. So I can write here px plus of your minus of your py will be equal to your final momentum, isn't it? यानी lambda divided by h divided by lambda x plus minus minus divided by h by lambda of your y is equals to h divided by lambda. Everywhere this lambda third will option. get cancelled, isn't it? तो ये हो गया मेरे पास कितना 1 by lambda x minus 1 by lambda y is equals to 1 by lambda. यानी लैम्बडा की वैल्यू कितनी हो गई लैम्बडा x लैम्बडा y डिवाइडेड बाय लैम्बडा y माइनस लैम्बडा x. लैम्बडा y माइनस लैम्बडा x कहाँ पर है हम लोग को कोई आ रहा है? लैम्बडा x माइनस लैम्बडा y तो नहीं होगा. सेकंड ऑप्शन लैम्बडा x लैम्बडा y डिवाइडेड बाय लैम्बडा x प्लस लैम्बडा y. थर्ड ऑप्शन इज लैम्बडा x लैम्बडा y डिवाइडेड बाय लैम्बडा x माइनस लैम्बडा y. अपने को लैम्बडा x माइनस लैम्बडा y आया. फोर्थ ऑप्शन लैम्बडा x प्लस लैम्बडा y. Particle P has been formed due to the completely inelastic collision. थर्ड ऑप्शन ये है ना बट अपने को लैम्बडा x minus लैम्बडा y minus लैम्बडा x आया. If x and y are moving in opposite directions, x and y are moving in opposite direction having the de Broglie wavelength lambda x and lambda y. बराबर ही है ना बेटा? Yes, sir. Lambda y minus lambda x. लैम्बडा y minus लैम्बडा x ही होना चाहिए पर लैम्बडा x minus लैम्बडा y दिया हुआ है. सर वो क्वेश्चन में उन्हें ऑपोजिट डायरेक्शन बनाना है, अपने डायरेक्शन उसका अलग रहा. कहाँ पर ऑपोजिट है? पार्टिकल P is formed due to completely inelastic collision of the particles नहीं x सर and उन्होंने y. y को x की जगह पे कंसीडर करे और x को मतलब नेगेटिव में कंसीडर करे, सर अपन पॉजिटिव में करे ना. पॉजिटिव में अपन तो Yes, बराबर ही लिखे ना. यस सर, मतलब उन्होंने y को पॉजिटिव कंसीडर करे, अपन x को करे ना. अच्छा एज पर ऑप्शंस देके कर रहे हो फिर. हाँ yes, sir. अगर ऑप्शंस को चेक कर रहे हो तो ऐसा हो जाएगा फिर. यू कैन डू लाइक दिस. इसको हम लोग y मान के चलते हैं और इसको हम लोग अपन x मान के चलते हैं. तो ये रिवर्स हो जाएगा जब लैम्बडा x इंटू लैम्बडा y डिवाइडेड बाई लैम्बडा x माइनस लैम्बडा y. तो नियर बाई आंसर आ जाएगा ये अपने थर्ड ऑप्शन. ठीक है Yes, sir. चलिए. इट्स इनवर्स. हाँ चलिए. अब एक क्वेश्चन देखिए बेटा डेविसन ग्रीमर एक्सपेरिमेंट में. आप सिर्फ ओरली सुनिए. In a Davison and Grimer experiment, the velocity of electron emitted from the electron gun is increased by. ये एक्सपेरिमेंट जब अपन ने किया था इसकी इंक्रीजिंग वोल्टेज. isn't it? यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स निकले इस इलेक्ट्रॉन्स की अगर मुझे स्पीड बढ़ाना है तो इस पोटेंशियल को क्या करना मुझे बढ़ाना पड़ेगा ना. We should Increase. increase the potential difference between the anode and filament. Cathode. यानी ये जो पोटेंशियल है ना इन दोनों के बीच में को पोटेंशियल अपने को इंक्रीज करना पड़ेगा. है कि नहीं? Increasing the potential difference between anode and filament. Clear? हमें क्लियर बेटा? Yes, यस सर. एक क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा गया हुआ था देखो ब्रैग्स इक्वेशन पे.
See this question. The interplanar distance in a crystal is 2.8 into 10 to the power of minus 8 meter. The value of maximum wavelength which can be diffracted ब्रैग्स इक्वेशन लेके करिए जल्दी से. सब कुछ दे रखा है. इंटरप्लेनर डिस्टेंस मतलब d दे रखा है. Small d is equals to 2.8 into 10 to the power of minus 8 meters. Is it? It is asking that maximum wavelength lambda max is equals to how much? What is the formula from the Bragg's equation, beta? Sir, Bragg's 5.6 equation के हम लोग लिख सकते हैं n into lambda is equals to 2d into your sin theta. So lambda will be equal to 2d into your sin theta divided by your n. Isn't it? Clear? अब बताओ लैम्ब्डा मैक्स कब हो जाएगी अगर इनकी वैल्यू मिनिमम होगी. If n is equals to minimum, यानी मिनिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 1. लैम्ब्डा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी और साइन थीटा वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? +1. ठीक है ना? sin 90. Yes, sir. लैम्ब्डा विल बी इक्वल टू 2d हो जाएगा. 5.6 into 10 power minus. तो 2 into this is 2.8 into 10 to the power of minus 8. Good question, beta. So this will be 5.6 into 10 to the power of minus 8 meters. Am I clear? Yes, sir. Sir, हाँ बेटा. sir, why मतलब we are taking maximum as 1 plus 1? बोला है ना लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू. लैम्ब्डा मैक्स मतलब अब दिए सो कंडीशन में 2d इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई n आया ना. ये वैल्यू जब भी मैक्सिमम होगी जब ये वैल्यू मिनिमम होगी. अगर जीरो लगे तो पूरा चेंज हो जाएगा ना, इंफिनिटी चले जाएगा. तो n की वैल्यू अपने कितनी मिनिमम रखना चाहिए कि लैम्ब्डा की वैल्यू मैक्सिमम आए. तो n की वैल्यू कितना रख सकता हूं मैं? 1 मिनिमम वैल्यू. और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 90. ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन कितनी होती है? +1 ही होती है ना. कितने एंगल के लिए? 90 डिग्रीज के लिए. सर अगर मिनिमम बोला तो पूरा रिवर्स के लेना. हाँ पूरा रिवर्स हो जाता है. कहानी पूरी रिवर्स हो जाती है. सर फिर वो केस में n max क्या लेते? कहाँ पर? अगर रिवर्स हो गया तो? रिवर्स मिनिमम होगा ना. अगर ये मिनिमम हो गया तो n की वैल्यू मैक्सिमम. लैम्ब्डा की अगर मिनिमम होना है तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम. सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस वन विल बिकम हाउ मच फॉर मी? इंफिनिटी. Yes, sir. ठीक है. Question number 1 sharing strain. Question number 2. Question number 3. Question number 3 देखो बेटा. If a nitrogen molecule is moving with a root mean square speed of 400 Kelvin, then de Broglie wavelength of a nitrogen molecule in air at 400 Kelvin is atomic mass of the nitrogen is 14.0076 U. चलो ट्राई करें. डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन.
वेरी गुड क्वेश्चन बट मिस्टेक करने के चांसेस 100%। थोड़ा केमिस्ट्री का भी कॉन्सेप्ट लग जाएगा। वन यू मतलब क्या है बेटा, एएमयू। वन यू की वैल्यू याद है किसी को? 931 MeV आर 1.66 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -27 kg। यहाँ फंस जाते हैं बच्चे। One UV is equals to 931 AMU or it is 1.66 into 10 to the power of -27 kg। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन गैस नहीं बोला, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बोला हुआ है। यानी मास कितना बन जाएगा इसका? मास इज इक्वल टू N2। N2 मतलब 2 इंटू 14.0076 U, यानी दिस विल बी इक्वल टू 28.0152 U। डन, यानी that value will be equal to 28.0152 into U। U की वैल्यू 1.66 into 10 to the power of -27 kg। अच्छा खासा टफ क्वेश्चन के नीचे चले जाएगा, ऐसा वाला क्वेश्चन आ गया है। टेम्परेचर आ गया अपने पास 700 400 केल्विन, एटॉमिक मास यूनिट दे रखा है और उसने क्या बोला, इफ द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज मूविंग विद रूट मीन स्क्वायर स्पीड एट 100 केल्विन then de Broglie's wavelength of nitrogen molecule will be equal to your how much? फॉर्मूला याद है? VRMS is equals to, क्या लिखोगे? RT by VRMS is equals to under root of your 3kT divided by m, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में। de Broglie wavelength का फॉर्मूला क्या है बेटा? लैम्बडा is equals to h divided by m into VRMS, यानी that will be equal to your h divided by your m into VRMS की वैल्यू कितनी हो गई? under root of your 3kT divided by your m, isn't it? तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा फाइनली? लैम्बडा इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय m इज राइट नाउ फॉर मी रूट m इनटू रूट m। तो रूट m मतलब एक रूट m गिव्स कैंसिल, ये पूरा अंदर चले जाएगा, तो इट इज अंडर रूट ऑफ योर 3km इनटू t। कैन आई राइट लाइक दिस? yes sir। अब इसकी पूरी वैल्यू आप लोग को मालूम है, आप कैलकुलेशन कर लीजिए। आई एम नॉट डूइंग द कैलकुलेशन। h की वैल्यू है 6.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -34 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ योर 3 इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू याद है 1.38 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -23 इंटू मास की वैल्यू ऑलरेडी आपको आ चुकी है। व्हाट इज द मास की वैल्यू? ये वैल्यू कैलकुलेट करके डालना है और टेंपरेचर इज गिवन एज ऑफ योर 400 केल्विन। डन। मास की वैल्यू कितनी है बेटा? 28.0152 into 1.66 into 10 to the power of -27 multiplied with your t। t की वैल्यू कितनी है? 400। अब इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए, whatever may be the answer that will be the condition। इतना वाला आ गया तो छोड़ के आना इज बेटर है, उतना कैलकुलेशन करके नहीं बैठ सकते एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 3 बोल लीजिए बेटा। 3 moles of nitrogen is being mixed with 5 moles of oxygen in a container। Ratio of the molar specific heat at a constant pressure and at a constant volume for the mixture will be equal to your how much? See, both the gases are what nature beta? Nitrogen and oxygen. Are they monatomic or diatomic? diatomic। So both the gases are diatomic in nature, so the value of the gamma for both the mixture of the gases will remain same ना, तो करने की जरूरत ही नहीं है। गामा वैल्यू will be equal to how much for monatomic gas के लिए? 7/5 आ गया। yes sir। Then क्वेश्चन नंबर, ये तो रे ऑप्टिक्स का है, ये भी इंसिडेंट पे रे ऑप्टिक्स का ही हो गया। कार मूविंग 10th one, then 11th one is projected work done, magnetic field, bar magnetism, work for energy का कॉन्सेप्ट हो गया वो तो।
20 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, तो आइडेंटिकल वॉल्व, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस हो गया, चार्ज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिंगल आयनाइज्ड एनर्जी 24। चलो 24 बोला। The logic circuit equivalent to NAND gate is very good question. Third option. Third option. Third option, sir. कृष्णा राउत बोलना आप। Third option, sir. पक्का? Yes, sir. देखो इसका इनपुट बताइए मुझे पहले। First is and then not. NAND गेट होना है ना? डायग्राम आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. क्या डायग्राम है बताओ मुझे आप लोग, क्या समझ में? इसका इनपुट ये है, ये नॉट है, यानी यहाँ पर ए बार हो गया, ए बी, यहाँ पर बी बार हो गया। बात समझ में आई? तो y की वैल्यू क्या हो गया? ए बार डॉट बी बार, या आई कैन राइट दिस वन एज ए प्लस बी का बार, यानी दिस विल बी व्हाट टाइप ऑफ NOR. गेट? NOR गेट। हमें क्लियर? सेकेंड वाला देख ली क्या हो रहा है। इसके लिए यहाँ पर भी इनपुट कितना है? ए बार, यहाँ NAND, sir. पर हो गया बी बार, यानी आउटपुट विल बी इक्वल टू मच और मी ए बार प्लस बी बार, यानी इसका आउटपुट विल बी इक्वल टू योर ए डॉट बी का पूरा बार, NAND. दिस विल बी नैंड गेट। आया? Yes, sir. चलो थर्ड वन बताइए। थर्ड वन के लिए, इसके लिए भी उतना ही है, ये बार है यहाँ पर और दिस वन इज आल्सो बी बार, यानी इसका आउटपुट कितना बन जाएगा बेटा? इसका OR output gates. बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर, फिर ये नॉट है, इजंट इट? यहाँ पर नॉट है, फिर बाहर भी आउट डॉट नॉट है, यानी ये कितना बन जाएगा? ए डॉट बी का डबल बार बन जाएगा। बना कि नहीं? यानी दैट विल बी इक्वल टू ए डॉट बी। ए डॉट बी मतलब ये विल बी एंड गेट होगा ये। आया? Yes, sir. देन फोर्थ वन देखो। फोर्थ वन के लिए अगेन ये जो जीरो है ना, ये ए बार है, ये बी बार है, तो इसका आउटपुट फिर नॉट है, यानी फाइनल वैल्यू विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा? इसका ये हो गया ए प्लस बी का डबल बार, फिर उसका आउटपुट बन गया ए का डबल बार मतलब ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब कौन सा गेट हो गया? आर गेट हो गया। सो व्हाट इज आंसर? द लॉजिक सर्किट इक्विवेलेंट टू नैंड गेट विल बी इक्वल टू सेकंड ऑप्शन। Sir. हाँ सर थर्ड ऑप्शन में जब NAND AND गेट के बाहर आएगी मान में भी नॉट है ना सर, मतलब नॉट गेट से पहले भी एक नॉट है। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ ना बेटा, इसका नॉट होके फिर और एक बार नॉट होता। थर्ड ऑप्शन में देखो ए बार बी बार, इसका आउटपुट क्या होगा बताइए? आउटपुट क्या होगा? ए बार डॉट डॉट बी के बार। प्लस हाँ डॉट डॉट बी बार, उसका आउटपुट, इसका आउटपुट नॉट है ना, नॉट है मतलब यहाँ कितना आ जाएगा? ए डबल बार डॉट बी डबल बार। आया? ए डॉट बी रहता सर। तो लास्ट में ए डॉट बी आया ना, वही लिखा है ना मैंने, ए डॉट बी, है कि नहीं? सर A dot B मतलब कौन नॉट सा का गेट है? ऑपरेशन एंड गेट। लास्ट, सर लास्ट नॉट के ऑपरेशन में जाने से पहले ए डॉट बी रहता ना सर। नहीं नहीं नहीं, ए डॉट बी कहाँ से होगा बेटा? ये देखो ए बार, ये डबल बार बी बार होगा, फिर उसका नॉट होगा। सर उधर Sir. नॉट दो बार है ना सर? हाँ दो बार आ रहा ना बेटा, देखो ए बार बी बार इसका आउटपुट है ना, इसका इनपुट विल बी इक्वल टू मच और बी ए डबल बार डॉट बी डबल बार, इसका फिर आउटपुट क्या हो जाएगा? ए डॉट बी होगा ना।
सर ए डॉट बी बार आता ना ए डॉट बी बार क्यों आएगा फिर? सर, ये जो लास्ट नॉट में जाने से पहले ऑपरेशन ए डबल ये बार नॉट है डॉट ना, बी डबल बार। ये सर ऐसा। एंड के लिए सिर्फ ए डॉट बी आता नहीं सर। हाँ तो ये देखो बेटा, इसका इनपुट क्या है बताओ यहाँ पर मुझे। एंड गेट के अंदर यहाँ पर जो रिजल्ट आया y इज इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार आया ना, यस सर। तो इसका नॉट मतलब क्या हो जाएगा, ए डबल बार डॉट बी डबल बार है। सर ये मतलब इक्विवेलेंट टू ए डॉट बी होता ना। हाँ तो ये फिर इसका नॉट होगा ना यहाँ पर, फिर इसका नॉट मतलब क्या हो जाएगा, ए डबल बार मतलब क्या हो जाएगा, ए डबल बार मतलब क्या, ए डॉट बी ना। सर ऑपरेशन में जाने से पहले यहीं पे मतलब हाँ फर्स्ट हाँ नीचे जो बराबर है, तो ये डॉट बी फिर बार है। ये सर ये भी 90 होता हाँ ठीक है, क्लियर। विच ऑप्शन। हाँ तो पूछा क्या था, नैंड गेट पूछा है ना, नैंड गेट मतलब सेकंड ऑप्शन। डन। ये आउटपुट आया सो अपने को, ये भी नैंड है ना। सर कौन थर्ड सा ऑप्शन भी आता ना सर फिर। थर्ड ऑप्शन? जब भी अपने को आउटपुट आया सर y इज इक्वल्स टू ए डॉट बी बार। y इज इक्वल्स टू ए डॉट बी बार, क्या नैंड गेट आ रहा हो, नैंडेड है ना? देखो। तो डायग्राम रॉन्ग होना पूरा सब, अपन तो करेक्ट ही कर रहे हैं ना। सर वो ए प्लस भी हो जाता ना। अच्छा लेता हूँ, ठीक। एक बार देखो क्रॉस चेक करो आप। सर वो ए प्लस भी हो जाता ना सर बाद में। हाँ ए प्लस बी होता, एक मिनट इसको जरा मैं रफ कर लेता हूँ। सर वो थर्ड ऑप्शन में जब एंड लिखे ना उधर से ए डॉट बी आना ना सर। फिर चेक कर रहा हूँ बेटा, एक बार जरा स्टक हो गया मेरे पास। आप लोग देखो एक बार थर्ड वन का डायग्राम डाल के ट्राई करके देखो। यहाँ पर कितना है बेटा, ये तो ए बार है ना, और ये हो गया बी बार। सर थर्ड वाले में ए प्लस बी आता सर। तो चेक करते ए हैं, प्लस बी वोल बार आ रहा सर। चलो ए नॉर बार गेट बी बार, इसका आउटपुट क्या है बताइए। ए डॉट बी वोल बार। ए बार डॉट बी बार आ गया। यस सर। अब इसका इनपुट यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर नॉट होगा, यानी ए डॉट बी बार का फिर पूरा बार, मतलब दिस विल बी इक्वल टू ए डबल बार प्लस बी डबल बार। आया, मतलब दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी, और ए प्लस बी हो गया ना, ठीक है। हमें क्लियर। यस सर। अब इसका आउटपुट फिर नॉट होगा ना इसका, मतलब नॉर ए फिट प्लस बी का बार, पता है ना, हमें क्लियर। यस। तो कितना आएगा, सेकंड ऑप्शन ओनली। सेकंड ऑप्शन मतलब, सर नॉर गेट आ रहा सर, अपने को नैंड होना है। हाँ तो ये कितना आ रहा है, ए बार डॉट बी बार आ रहा ना,
Done. Check. 26 देखिए बेटा, which among the following is a supplementary quantity? Third option. Third option. Is the supplementary angle. Very good. Next वाला जल्दी. If the error in the measurement in the radius of the sphere is 0.2%, then maximum error in the determination of the volume of the sphere will be equal to how much? One word answer है, बोल देना जल्दी. Second option, sir. पक्का? वॉल्यूम Yes, के लिए sir. Yes, 4 by sir. 3 pi r cube. V is equals to 4 by 3 pi into r cube. यानी डेल्टा V by V will be equal to 3 into delta R by R into percentage बोला, डेल्टा R by R कितना दे रखा? 0.2. 3 into 0.2. 0.6%. Yes, sir. Third option. 0.6% मतलब third. Third option. Coefficient of linear expansion. 30th one देखिए बेटा. By default मैंने आप लोगों को बोला भी था बहुत बार. Coefficient of linear expansion of two rods of different materials are alpha 1 alpha 2 and their lengths are L1 and L2. If L1 minus L2 is maintained at the same at all temperatures, then the correct relation among the following will be equal to how much? L1 alpha 1 must L1 be alpha equal 1 to is equal to L2 alpha alpha 2. पढ़ते बैठे हो तो बहुत टाइम हो जाएगा बेटा. Two rods of the same dimensions but different thermal conductivities are joined end to end as shown. If T1 and T2 are the temperatures maintained at the ends, then the junction temperature will be equal to how much? Junction temperature का फॉर्मूला याद है आप लोगों को? Yes, फॉर्मूला याद sir. है थर्मल कंडक्टिविटी का? पहले ये बोलो, dq by your dt is equals to your k into a into temperature difference divided by length, that is nothing but a few dx. याद आया? So जिसमें जितनी हीट फ्लो करेगा, dq by your dt of the first rod will be equal to dq by dt of the second rod. जंक्शन टेम्परेचर के लिए मैंने फॉर्मूला बोला था, बेसिकली थीटा विल बी इक्वल टू योर k1 into थीटा 1 प्लस ऑफ योर k2 into थीटा 2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस ऑफ योर k2. थीटा की जगह क्या लिखना है यहाँ पर मुझे? t1 प्लस ऑफ योर k2 into t2 डिवाइडेड बाय योर k1 प्लस k2. So what is an answer I can write? Second option. That's it. k1 k2 होगा ना? सेकंड ऑप्शन आ रहा. The third option. So third option. थर्ड ऑप्शन k1 t1 फोर्थ आएगा बेटा. प्लस है ना? Yes, sir. Yes. k1 t1 plus k2 t2 divided by k1 plus k2. It's second नहीं होगा. Fourth option will be the answer. Done? Yes, sir. चलिए. 34 is electric field. Electrostatics. हाँ. 35 का आंसर बोलिए बेटा. Thermodynamic option, sir. process in which there is no heat exchange between a system and its surrounding is called as isothermal, isophonic, adiabatic, isobaric. कौन सा होगा? Third option. थर्ड ऑप्शन adiabatic. चलिए. और galvanometer है, engine, refracting index, dot, strings, particulation, then magnitude of velocity 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. हाँ, तो 48 देखो बेटा. The energy of the photon is related to the frequency E is equals h in nu. H is a Planck's constant. The value of the Planck's constant is 6.62 into 10 to the power of minus 34 joule in SI system. The value of h in the CGS system will be equal to how much? I hope you can do this question बेटा, मुझे करने की जरूरत ना पड़े. SI यूनिट में वैल्यू दे रखा है. We need in CGS system. H की वैल्यू कितनी है बेटा? H की वैल्यू is given for me as in the problem. 6.62 into 10 to the power of minus 34 joule second. 1 joule will be equal to how much बेटा? याद है आप लोग को? 1 joule will be equal to 10 to the power of 7x. Yes, sir. Isn't it? यानी this value will be equal to how much बेटा? 6.62 into 10 to the power of minus 34 into 1 joule is equals to 10 to the power of 7 erg into second. So this will come out for me 6.62 into 10 to the power of minus 27. या आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं. N1 U1 is equals to N2 U2 लेके भी कर सकते हैं. थोड़ा Yes, लंबा हो जाएगा. यहाँ पर डायरेक्टली अगर एक कन्वर्शन फैक्टर आपको याद है तो डायरेक्टली डाल दीजिए. That will give me the answer. So the answer will be in terms of your erg second. Done? Yes, sir. Third option. 49 and 50. So हो गया बस. इससे ज्यादा कुछ नहीं है. चलिए. Done? Sir. हाँ.
सर ये एक बार कन्वर्जेंस के पूरी एक मतलब एक पीडीएफ है तो दिखाइए ना सर, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 कैलोरी एंड दिस 1 जूल 1 तो नहीं है शायद, मेरे ख्याल से मैं काम करता हूँ, कल संडे ही है ना, होगा तो मैं एक बार लिख देता हूँ, लिख लेके एक पेपर में आप लोगों को शेयर कर देता हूँ पूरे कन्वर्शन एक बार, पूरा फिजिक्स के Yes, जितने sir. भी कन्वर्शन अगर मेरे पास है, जितने भी मेरे को याद है, वो पूरे एक पेपर पे लिख देके कन्वर्शन आप लोग को एक बार शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके चलो बाय। कल सेम एज यूजुअल रहेगी क्लास नाइट में, अगर कुछ चेंजेस रहेंगे तो आई विल अपडेट यू इन द व्हाट्सएप, बट 90% तो क्लास रहेगी। बट टुमारो विल ट्राई टू स्टार्ट विद एटम्स बेटा, इसको आप लोग थोड़ा पीवाईक्यूज खत्म कर लीजिए, ड्यूअल नेचर को थोड़े थियरी क्वेश्चंस खत्म कर लीजिए एंड कीप द फुल स्टॉप फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय टुडे सेक्शन और टुमारो सेशन। कल संडे है, कल इवनिंग विल स्टार्ट विद एटम्स, एटम्स भी एक सेशन में हो जाएगा आराम से, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी केमिस्ट्री में आता ही है, लाइमा सीरीज, बामा सीरीज, पैशन सीरीज, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, आयनाइजेशन एनर्जीज वगैरह सो भी है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, काइनेटिक एनर्जी वगैरह पूरा, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, मैग्नेटिक मोमेंट्स वगैरह, सो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है व्हिच इज कनेक्टेड टू करंट इलेक्ट्रिसिटी आल्सो, वो कर लेंगे अपन कल। तो एक बार हुआ तो रिवीजन करके आइए एटम्स का, दैट विल हेल्पफुल फॉर, ठीक है। एटम्स हो गया तो न्यूक्लियर फिजिक्स भी एक हो जाएगा, उसके बाद फिर सेमीकंडक्टर्स एक, यानी नेक्स्ट वीक के अंदर हम लोग मॉडर्न फिजिक्स अलॉन्ग विद वेव ऑप्टिक्स खत्म कर सकते हैं। वेव ऑप्टिक्स में इंडिविजुअली पढ़ ले सकते हैं अपन बेटा, क्योंकि इंटरफियरेंस, डायफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन 3 या 4 फॉर्मुलेस पे ही अपने को वेव ऑप्टिक्स के फॉर्मुलास बनते हैं बेसिकली, ठीक है। यस सर, चलिए ठीक है बेटा, बाय। थैंक यू। थैंक यू सर।